ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರದೆ ನೋಡಿ Okay, after this now, you did this and we can do it. I can take it right. Sound. रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में, दिल में जी दिल में रहना है। एक लड़की और एक लड़के की कहानी है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं. There's a very thin line between love and hate. It's about that line. It's about sometimes you can be completely in love with someone, but a small action or a gesture of theirs could completely change that emotion for the person. And sometimes you may hate somebody absolutely, but something about them can make you fall in love with them. रहना तेरे दिल में उसी चीज़ पर बनी है. It's a love story और मुझे कुछ कहना है कि तरी एकदम अगेन डिफरेंट लव स्टोरी है. 2 हीरो हैं इसमें और 1 हीरोइन है. दूसरा हीरो हमने एकदम सरप्राइज रखा है, किसी को कहा नहीं कि कौन है. ये ऑडियंस सिर्फ पर्दे पे आके देखेगी वो कौन है. आई जस्ट थिंक दैट हमारा जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो फ्रेश है एंड डिफरेंट नहीं है. कई बार इस तरीके के प्रेजेंटेशन हो चुके हैं. मॉडर्न है इसीलिए फ्रेश है. It's a very light-hearted, young, yuppie kind of a film. We'd like to call it that. It's about this guy who doesn't know what love is all about. He doesn't believe in, running after girls and stuff like that. And what happens when he falls in love with a girl and how he tries to get her love, which is what the whole story is all about. जो कैरेक्टर मुझे इस फिल्म में ऑफर किया जा रहा था वो मेरे निजी ज़िंदगी से बहुत करीब थी. वो कैरेक्टर उसमें ऐसे ट्रेट्स थे जो शायद मैं कॉलेज में अपनाना चाहता था और था भी. तो मैं तुरंत रिलेट कर पाया इस कहानी से. रीना बहुत सीधी सादी घरेलू लड़की है जो इंडिपेंडेंट भी है. अपने बलबूते पर उसने अपने लिए एक मकाम पैदा किया है. वो काम करती है, अपने माँ बाप से दूर रहती है, वेल एजुकेटेड है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है. वो बड़ी हुई है ये बात को मानते हुए कि वो जिसी से भी शादी करेगी वो अपने माँ बाप के चॉइस का लड़का होगा. She's completely all right with the idea. She has no problems with that. And she does marry the man of her parents' choice. Or rather, almost does. Of course, there's a twist to the whole story. And the best thing about her is that every young Indian girl will be able to identify with Reena because she's not exactly crazy about the MTV culture. She's a very modern girl, yet she has a lot of Indian ethics and values imbibed in her, which does not show in the way she dresses, but the way she thinks. Deep down, she's Indian. Actually, this is a remake of a film which we made in Tamil together. I directed the film and Madhavan was the main lead in that film. And this offer came to do the film in Hindi from Mr. Vashu Bhagnani. We worked on the narrative, we worked on the screenplay and the presentation. The way the film will come out on screen will be different. We've really worked on making it look as different as possible. In fact, Vashuji insisted that we make it look as different as possible. He didn't even want one location which we used in Tamil film to be in. Even the song, concepts and everything, even though we follow the same flow, he wanted it to look as different as possible. एक तो साउथ अफ्रीका किया अब्रॉड में, जैसे बॉम्बे किया है, यहाँ इस साइड जयपुर किया है, दिल्ली किया है, अहमदाबाद किया है और अब न्यूजीलैंड करके आए हैं. ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರದೆ ನೋಡಿ Okay, after this now, you did this and we can do it. I can take it right. Sound. रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में, दिल में जी दिल में रहना है तेरे. साउथ अफ्रीका में जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे बहुत ठंड थी, -2 डिग्रीज चल रहा था. और मैंने सुना था कि हीरोइन की लाइफ होती है शिफॉन की साड़ी पहनना और स्विट्जरलैंड में गाना करना, जहाँ पर आप ठंड में तड़प रहे होंगे पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. एंड व्हेन यू वाचिंग, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हेन यू वाचिंग अ मूवी
It looks beautiful and looks great. देखने में बहुत आसान होता है पर करने में बहुत मुश्किल. And when I finally got to South Africa and I shot for some scenes over there and songs over there, in the cold, in chiffon clothes, which are like very easy, you get really cold in them. That's when I realized it's not at all easy to be a heroine, because it's not only about looking good, and you could be in your most uncomfortable state, but you have to look your best and feel your best, and only then will that come across. बहुत lively, बहुत bubbly, very cliched term, but it's quite different. It's good fun, it's high energy, and the wordings have a lot of depth and a lot of meaning to them. There's one song particularly that is my personal favorite, Sach Keh Raha Hai, which has tremendous feeling to it. I think Madhavan's done a fantastic job in that song. It's a solo song, but the emotion that comes across in that song is absolutely amazing. इस फिल्म का जो आखिरी गाना है, सच कह रहा है दीवाना, वो मेरा सबसे फेवरेट गाना है. मेरे ख्याल से वो गाना हर शख्स कभी ना कभी एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर गाया होगा. We're introducing a new guy called Haris Jayaraj. Haris Jayaraj scored the music for the Tamil film. So Vashu Bhagnani decided to use him for the Hindi, and we've come out with some really good numbers, and I'm sure it's going to really shake up the industry as far as music is concerned. तो ये एक मुझे लगता है एक नया म्यूजिक डायरेक्टर है जिसके एक अलग थोड़ा टाइम लग रहा है समझने में. ऐसा नहीं कि अब एक बार में समझ लेते हो. जैसे मुंबई आप एक मिनट में ले लेते हो, ज़रा ज़रा गाना है, सच कह रहा है, ये क्या आप ये ब्लड में जैसा एक बीमारी होती है ना वैसे चढ़ने वाला गाने हैं कि 3-4 बार सुनने के बाद उतार नहीं सकते हैं. अगर हमारी फिल्म एक लेवल में थी तो उसको दुगने लेवल पे ले जाने वाले हैं हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कमाल की म्यूज़िक दी है, बैकग्राउंड ही नहीं बल्कि सॉन्ग्स की भी. और मुझे लगता है कि उनका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ढेर सारे फिल्मों में वो म्यूज़िक डायरेक्ट करेंगे. इस म्यूज़िक डायरेक्टर की मुझे लगता है वैल्यू जो है ना हमारे यहाँ बहुत लंबी होगी, बिकॉज बहुत सालों से ना एक ऐसा म्यूज़िक नहीं है टचवुड जिसका लंबा रेस हो. इस सॉन्ग में एक खासियत है कि गाने में लड़की नहीं है फिर भी लड़की है, ये इसकी खासियत है. और उसको हम किस ढंग से पिक्चराइज कर रहे हैं और किस तरीके से उसको क्या पंचेस है, क्या विजुअल्स है, वो सब देखते हुए क्या डांस मूवमेंट है और लड़की कैसी आएगी और कैसे जाएगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इस गाने में. इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर भी मतलब नए फर्स्ट टाइम म्यूज़िक डायरेक्टर हैं साउथ के, मिस्टर हैरिस जयराज. लेकिन मुझे लगता है कि मेरी फिल्म इस फिल्म को कम से कम 100% उन्होंने वो कहते हैं बूस्ट किया है अपने म्यूज़िक से. सच कह रहा है जो गाना है आप उसका एक एक वर्ड का माने अगर सुनेंगे तो आपके माइंड में बैठेगी. जो ज़रा ज़रा जो गाना है वो माइंड में बैठने वाला गाना है. उसने एक एक वर्ड इंग्लिश में उसे समझा, उसको किस तरह से ट्यून करके पिक्चर में डाला ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया. इस फिल्म के जो असली हीरो हैं वो हैं मिस्टर वाशु भगनानी, जो कि हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जो कि पब्लिसिटी में और फिर ख्याल रखने में इस फिल्म का और फिर हमारा ख्याल रखने में और हर चीज़ पर जो ध्यान देने में इन्होंने जितना वक्त और जितना क्या कहते हैं एफर्ट्स और पैसे ज़ाया किया है शायद बहुत कम लोग कर पाएंगे. और इन्होंने हमें कभी नहीं रोका. हमने कहा था कि हम इस फिल्म को इंडिया में शूट करना चाहते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, गाने आप जहाँ आप शूट करना चाहो आप वहाँ कर सकते हो. Vashu Bhagnani is like no holds barred, nothing stops him, you know, and he's a very creative person. He's always with us. He's not the producer who'd sit in the hotel room and sleep while we slog it out here. He's somewhere on the sets right now, I think setting up the lights somewhere inside and talking to people as to how long we can shoot here, and that's the kind of producer we actually want, and he is all of that. रहना है तेरे दिल में is a movie that will stay in everybody's hearts because it's a very simple movie. It's clear cut, it's lucid. हर चीज़ जो आप ये पिक्चर में देखेंगे वो आपने शायद कहीं देखा होगा और अच्छा लगा होगा आपको. सर लवली फिल्म, पब्लिक एंजॉय करेगी. अच्छे गाने हैं, अच्छी म्यूजिक है, अच्छी लव स्टोरी है, अच्छी फैमिली की कहानी भी है, हर आदमी पसंद करेगा. The best thing about रहना तेरे दिल में is that when you watch the film, you don't feel like you're watching a movie. आपको ऐसे लगता है आप किसी की जिंदगी में झांक कर देख रहे हो. रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में, दिल में जी दिल में